Hello everyone, hope all of you are doing well. And in our previous session, we learnt about the data frames, how to create the empty data frame, creating a data frame from the list. Then we also learned how to create the data frame from the list of the dictionaries, creating the data frame from the dictionary of ND arrays, and even creating the data frame from the dictionary of the series. Now in this session, we will be learning few more methods of creating the data frames, that is from the text or CSV file, comma separated values file, and then selection of the elements of the data frame by using a label, by using the integer location. And for that we will be covering few more methods of selection, then slicing as we did in the case of the numpy or series, then iteration, navigating through the various elements row wise or the column wise. So various methods are there to achieve all this, and we will be covering in today's session all these functions and the methods for the data frames. Let's begin with the first one, creating the data frame from the text file or the CSV files. Now the text file or the CSV file means the comma separated value file. They are simply the text file where the commas and the new lines they are used to define the tabular data in the structured way. This by default it opens up in the notepad since it is a text file only, and you may create easily the CSV files. I'll just show you a demo how to create a CSV file from the Excel file or whatever files you are having. Yes, I'll give you the demo also of a CSV file. Here is the test underscore CSV. I have given it the name test underscore CSV. These are the various types of the see each column name or the attributes or the values, they all are separated with the comma, and delimiter enter key is taken as a delimiter. Now how to create such type of the file? Suppose I have this Excel file which contains the data about the exam centers of the various students, which we have recently updated on the CBSE website. So let's see how to convert this Excel file to the CSV file. So here is the data. You can see that serial number column, roll number, name, then exam center, then the district of the examination. Now these are the various column headings, and these are the records under it, tuples under it. So if I want to make it a CSV file, we will simply click on the file and save as. We are going to create a duplicate copy. I'm going to save it on the desktop. Now when this save as dialog box opens up, now focus at this point, save as type. बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, ये एक्सेल का वर्कबुक होगी, हम इसको यहाँ से क्लिक करके ये आपने यहाँ पर CSV और ब्रैकेट में लिखा होगा कॉमा डीलिमिटेड, ठीक है, सेलेक्ट कर लिया, नाम इसका मैंने यही रहने दिया, क्लिक ऑन द सेव, ठीक है। Let's see where it is created. Here is the name, exam center 12 underscore IP, and you can easily see all the records are comma separated, even the column headings also comma separated, and each tuple is in the separate line. This is how the data is given. Even when the 12th result is out, this CBSE sends us the notepad file, comma separated file, CSV file to the schools, and we used to import it into the Excel. This file again can be imported into the Excel, and each value will be can be represented in the separate columns. So how to create a data frame from such type of the file, that is what we are going to learn now. So let's move on to here. The basic process of loading the data from the CSV file into the pandas data frame is achieved by using the read underscore CSV function in the pandas. So the name of the function that we are going to use for capturing the data from the CSV file and then storing it in the data frame is read underscore CSV. That reads the data from the
whatever file with the extension .csv in the same directory at the Python access process is based. Now, there are two different type of the methods in which we can give the file name in this method. There is a one argument that it accepts. pd.read csv is the method. A read csv method accepts one parameter, that is the name of the file. Now this name of the file may be given directly, simply, that is relative path, or its absolute path can also be represented. Now there is a difference between the relative path and the absolute path. Now if the your CSV file is stored in the same directory as you have stored the program files or the project files, then it will be automatically taking up its path. But if they are at the different location, suppose you have saved the program in D drive and your CSV file is on the desktop, then you have to give the exact location of that CSV file, that is complete URL कि ये सी ड्राइव में कौन से यूज़र अकाउंट के अंदर है, उसके अंदर कौन सा फोल्डर है, उसके अंदर फर्दर डायरेक्टरी कौन सी है, एंड देन द नेम ऑफ द फाइल डॉट सी एस वी एक्सेट्रा. So that becomes the complete URL. Complete URL is given, that is called absolute path. When you are simply putting the file into the same directory as you have stored the programs, so that becomes current directory and its path becomes the relative path. There you need not to give any complete ऐसे URL of the file. Simply ऐसे उसका नाम दे दिया .csv दे दिया, ठीक है. और उसके बाद ये इस CSV फाइल को कैप्चर करेगा और इस फंक्शन में उसका डाटा रीड करके डाटा फ्रेम के अंदर स्टोर करेगा. And then we can print the data frame. So I have shown you the file name CSV. I'll tell you where I have stored it. You can see the path E drive 12th Python, then 12th underscore Python again, then underscore program, then pandas. So this is the directory file explorer. Now onwards, whenever you will be creating all such programs in the Python, what you will do, you will go to the projects, click on the new project, and then give the name of the project, select the location or the folder where you want to save all this. I have selected the E drive and the 12th Python folder. Inside that another folder is a 12th Python program. उसके अंदर एक और फोल्डर रखा है pandas. तो उसके अंदर मैंने सारे के सारे प्रोजेक्ट्स आपकी फाइल्स जो रखी हुई हैं वही मैंने क्या कर दिया, स्टोर करके आपकी CSV फाइल को भी वहीं स्टोर किया बनेगा, ठीक है. वंस यू हैव स्टोर्ड दैट, अब आप इसका रिलेटिव पाथ यूज कर सकते, कोट्स के अंदर देना है और आप सिंपली इसको लिखोगे. अगर मैं इसको रन करूंगा, यू कैन सी दिस इज हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड. ये जो दो फंक्शंस आ रहे हैं इसको अभी मैं कमेंट बना देता हूँ. अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको. सी दिस इज ऑल सीरियल नंबर, रोल नंबर, नेम ऑफ द कैंडिडेट, स्टेटस. ये इस CSV फाइल से उठ के आ रहा है. आई जस्ट शो यू द वेयर आई हैव सेव्ड. ये CSV फाइल थी जो कि मैंने डाटा फ्रेम में उसको इंपोर्ट, ठीक है. ओके, नाउ practically let's see what all this means. थोड़ा सा इंपोर्ट किया pandas as pd, df is equal to pd.read csv एंड उसके अंदर उस CSV फाइल का रिलेटिव पाथ दे दिया. रिलेटिव पाथ मीन्स व्हेन बोथ द फाइल एंड द program file are stored in the same directory, then we need not to give the complete path, so it will automatically take its URL. So this is called the relative path. And then I printed the data frame. So this is the result you got. There are two more functions that we may use. Head and tail you have already used in the series case. So here I am giving df.head2, that means front से दो records आपको डिस्प्ले करवाएगा. तो ये करके इसमें से पहले दो ले लिए ये बात, तो ये नीचे शो कर दिए, ठीक है. अगर लास्ट वाले दो लेने हैं तो मैं इसको भी कमेंट से हटा देता हूँ. So you can see the last two records tuples also displayed. So head and tail function, tail means back से
बैक साइड से और हेड मीन फ्रंट साइड से आपके रिपोर्ट्स को डिस्प्ले करें। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, लेट्स हैव अ few more this in detail regarding the paths. There are two methods through which we will come to know the current directory and what are the various files in that current. The two methods are os.getCwd. This os is the library that we have to import. Then os.listdir. os.cw function returns the current working directory of the file. Cwd, current working directory of the file used to execute the code, so that you come to know the current working directory कौन सी है। ठीक है, ये वेरी करेगा सिस्टम टू सिस्टम, मेरे वाले पे कुछ और हो सकता है, आपके सिस्टम पे आपने कुछ और डायरेक्टरी शो की हो सकती है एंड सेट की हो सकती है। तो मैंने तो +2 ई ड्राइव के अंदर 12 पाइथन, उसके अंदर 12 पाइथन प्रोग्राम, उसके अंदर पांडास, ये सारा रखा हुआ है। सिमिलरली यू मे हैव अ डिफरेंट। सो here I'm first going to print, I have given the statement import pandas as pd, then import os, उसके बाद क्या किया print os.getCwd। तो ये क्या कर देगा, ये स्क्रीन पे हमें आउटपुट में करंट डायरेक्टरी का नाम दे। उसके बाद उस करंट डायरेक्टरी के अंदर कौन कौन सी फाइल्स हैं अगर वो भी देखना है तो प्रिंट os.listdir, तो उसके अंदर एक आर्गुमेंट दे दिया os.getCwd। इस वाली करंट डायरेक्टरी के अंदर कौन सी फाइल है वो हमें लिस्ट करनी। देखो यहाँ पर लिस्ट डायरेक्टरी क्या कर रहा था, जो भी हमारी डायरेक्टरी है उसका कंटेंट बता रहा था कि उसके अंदर कौन कौन सी फाइल है। तो कौन सी डायरेक्टरी है वो भी हमने कौन सा कहाँ से दे दिया, मेथड से ही दे दिया os.getCwd। इस डायरेक्टरी की जो भी फाइल्स हैं वो लिस्ट कर। आगे क्या किया हमने, हम एक डाटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं pd.read.csv, टेस्ट csv, नाम ही रखा हुआ मैंने test_csv, एक्सटेंशन तो csv है ही। तो ये रिलेटिव पाथ होगी, यहाँ कंप्लीट पाथ नहीं है। जो नीचे वाली पाथ है वहाँ देखो, यहाँ पर आपने एब्सोल्यूट पाथ, दोनों केस में रिजल्ट सेम ही होगा क्योंकि ये फाइल भी सेम ही है, ये फाइल भी सेम ही है। इसके बाद लेकिन मैंने एक को यहाँ स्टोर करके रखा है, एक को करंट डायरेक्टरी के अंदर सेव करके रखा, फाइल सेम ही थी इसलिए आउटपुट सेम आया। अगर फाइल डिफरेंट होगी तो आउटपुट भी डिफरेंट आ गया। यहाँ देखो कंप्लीट पाथ आ गया, सी यूजर्स के अंदर एल यूजर नेम है, उसका डेस्कटॉप है, उसके ऊपर test_csv.csv और उसकी एक्सटेंशन। तो ये एब्सोल्यूट पाथ है, इस तरीके से प्रिंट करते हैं। लेट्स प्रैक्टिकली सी दिस। हमारे पास ये रहा, अभी फिलहाल मैं इसको एज इस रन कर रहा हूँ। यू कैन सी दिस इज द करंट डायरेक्टरी। ये इस कमांड के थ्रू आपके पास आउटपुट आ गया e:/12 पाइथन प्रोग्राम्स। अब मैं क्या करता हूँ, इस डायरेक्टरी में कौन सी फर्दर फाइल्स हैं वो भी मुझे देखनी है। तो मैंने इसको भी कमेंट सेट है, फंक्शन कैन बी यूज टू डिस्प्ले ऑल द फाइल्स इन डायरेक्टरी। डायरेक्टरी कौन सी, ये वन getCwd जो करंट डायरेक्टरी, उसी के ये देखो ये सारी फाइलें इसके अंदर सेव है, यहाँ से लेके यहाँ। ठीक है, इसके बाद क्या करता हूँ मैं, रिलेटिव पाथ के थ्रू इसका आउटपुट देता हूँ। इसको मैं कमेंट बना रहा हूँ। ठीक है, अब रिलेटिव पाथ के थ्रू मैं इसको df किया और यहाँ पर मैं प्रिंट df को भी कमेंट से हटा दिया। ये कंटेंट है, df क्रिएट हुई बाय रीडिंग द टेक्स्ट _csv.csv एक्सटेंशन। ये वाली चीज़ है वो एक्सटेंशन है, ये वाली जो चीज़ है वो फाइल है। ठीक है, उसके बाद मैं इस वाले को कमेंट बनाता हूँ। अब एब्सोल्यूट पाथ के थ्रू लेता हूँ इसको। एब्सोल्यूट पाथ में मैंने ई वाला पाथ नहीं दिया हुआ, मैंने जो डेस्कटॉप पे रखी है वो पाथ दिया है। तो किसी भी फाइल का पाथ देखना हो तो उसको पाथ को देखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक करिए, उसमें उसकी प्रॉपर्टीज़ में चले जाओ, वहाँ से पाथ को कॉपी करो। ठीक है, ये c:/users l डेस्कटॉप के ऊपर ये वाली .csv एक्सटेंशन या एक्सटेंशन दी हुई है यहाँ पर, और ये उसकी पाथ हो गई। पहले इतना सा कॉपी करो, उसके आगे स्लैश लगाओ, फाइल का नाम लिखो .csv। इज इट क्लियर? या फिर एक काम और कर सकते हो आप, कंप्लीट एब्सोल्यूट पाथ ही चाहिए इसकी, तो ओपन विद कोई भी एक्सप्लोरर वगैरह के साथ ओपन कर लो, वहाँ एक्सप्लोरर की एड्रेस बार में इसका कंप्लीट पाथ आ जाएगा, वो आप उसको कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो यहाँ। ठीक है, रन करोगे आउटपुट वैसे ही आना क्योंकि मैंने फाइल सेम है। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं हम इसको
लेट्स मेक इट द कमेंट। ये सारा बन गया कमेंट। अब मैं आ गया यहाँ मैक्स कॉलम्स, pd.options.display max columns 2, pd.options display max rows 5। अब देखिए इसका क्या मीनिंग है और क्या आउटपुट आएगा। नाउ मैक्स रोज कितनी की 5, हमारे पास थी भी कितनी 5, 0 से लेकर 4 तक 5 ही रोज, तो सारी 100 रोज दिखाया, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो एंड द फिफ्थ। बट द कॉलम वी हैव गिवन 2, व्हाट इट विल डू, जितने भी इसके पास कॉलम्स होंगे उनको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है, एक आगे से लेगा एक पीछे। ठीक है, अब सपोज करो मैं क्या करता हूँ इसमें, कॉलम में मैं 4 डालूँ, 1 2 3 4। अब अगर मैं कॉलम में 3 डालूँ, कैन इट डिस्ट्रीब्यूट इवनली? हम चेक करिए, नहीं कर सकता, क्योंकि अगर एक आगे से लेगा कि पीछे से लेगा, तीसरा कौन से लेगा, ना फ्रंट से ले सकता ना और से लेगा, तो छोड़ देगा वो उसको सिर्फ 2 ही कॉलम। इसलिए सिमिलरली रोज है, रोज में अगर 3 कर दूँ, देन सी व्हाट हैपेंस, फर्स्ट वाली लेगा, लास्ट वाली लेगा, बाकी छोड़ देगा, थर्ड 3 नहीं शो करेगा, ओनली 2 शो करेगा। हाँ अगर मैं 4 ले लेता तो 2 टॉप की और 2 बॉटम की, ये देखिए 2 फ्रॉम द टॉप दैट इज मीन हेड, 2 फ्रॉम द बॉटम दैट इज टेल। ठीक है, तो ये हमारे पास करंट डायरेक्टरी के लिए आ गया, ये हमारे पास उसके अंदर कौन सी फाइल है उसके लिए आ गया, ये रिलेटिव पाथ के थ्रू हो गया, ये एब्सोल्यूट पाथ। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, ये हो गया सिलेक्शन। सिलेक्शन मीन how to display based on the label and the integer location. Now rows can be selected by passing a row label to a location function. तो लोकेशन इस फंक्शन का नाम है जिसके अंदर हम रो का लेबल पास करेंगे, उसका जो हमने खुद का इंडेक्स रखा हुआ है वो पास। ठीक है, नाउ आई हैव क्रिएटेड अ डाटा फ्रेम फ्रॉम द डिक्शनरी ऑफ द सीरीज। ठीक है, उसकी जो की वैल्यू है वो 1 है, ये 2 है, तो ये कॉलम के हेडिंग बने। ठीक है, pd डॉट सीरीज, उसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं 1 2 3 और इसके लिए इंडेक्स दे दिए ABC। दूसरी वाली जो डिक्शनरी थी उसका जो एलिमेंट्स थे 1 2 3 4 है और इसमें 1 2 3 ABCD इंडेक्स है, इसमें D नहीं है तो उसकी जगह वो NN देगा आपको। तो df इज इक्वल टू pd डॉट डाटा फ्रेम D, इस डिक्शनरी से हमने डाटा फ्रेम क्रिएट कर लिया। उसके बाद क्या किया, प्रिंट df डॉट LOC। अब हमने लेवल पास किया LOC फंक्शन के अंदर, LOC फंक्शन के अंदर इसका लेवल पास किया, कौन सा लेवल पास किया, B। अब B से कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा, यहाँ पर 2, यहाँ पर B से कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा है 2, तो आपके पास क्या बना, ये 1 2.0 2 का 2.0। ठीक है, ये आपकी की आ गई और ये इसका वैल्यू। ठीक है, नाउ नेक्स्ट सेम थिंग, बट नाउ वी विल बी पासिंग द इंडेक्स नंबर। ठीक है, अब वहाँ पर लेबल नहीं पास किया, ये इंडेक्स 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 0 1 2 3, 0 1 2 3। अब वो वैल्यू पास की तो उसके लिए हमने ILOC किया, इंटीजर वैल्यू, इंटीजर बेस्ड लोकेशन। ये लेवल बेस्ड लोकेशन था LOC, ये ILOC मीन्स इंटीजर बेस्ड लोकेशन। तो यहाँ क्या किया, D इज इक्वल टू, ये वही सीरीज लिस्ट ऑफ डिक्शनरी ऑफ द सीरीज है, वहाँ से इसको क्रिएट किया, ILOC 2 किया पास, तो 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ कौन सा है C है, 0 1 2, C के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू कौन सी है 3। ठीक है, यहाँ पर कौन सी थी वैल्यू, अगेन 3, इस तरीके से शो। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, स्लाइसिंग। स्लाइसिंग मीन फेचिंग द और एक्सट्रैक्टिंग द अ पोर्शन ऑफ द समथिंग, दैट मीन यहाँ पर फ्रेम है तो फ्रेम के कुछ पोर्शन को डिस्प्ले कर।
जैसे आप ऑरेंज की कुछ स्लाइस निकालते हो, वैसे ही इसमें भी हमने क्या किया, डाटा फ्रेम में से स्लाइस निकाल, डिक्शनरी वही मैंने लिया सेम, डी इज इक्वल टू 1 सीरीज ले ली, फिर 2 अनदर सीरीज ले ली, डाटा फ्रेम क्रिएट कर दिया। अब की बात प्रिंट किया डी एफ ऑफ 2:4, कॉलन सिंबल इज यूज टू रिप्रेजेंट द अरेंज टाइप। ओके, ठीक है। सो दिस कॉलन ऑपरेटर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर भी बोलते थे हम इसको दूसरी लैंग्वेजेस में, लेकिन अभी यहाँ पर किस लिए है यूज हो रहा है, ये रेंज के लिए यूज हो रहा है, मल्टीपल रोज को फैच करने के लिए यूज हो रहा है। ये 2 इंडेक्स से स्टार्ट करेगा और 3 इंडेक्स तक मूव करेगा। दिस इज एक्सक्लूडिंग द दिस वन, ये इसको इंक्लूड नहीं करेगा सेकंड वाले आर्गुमेंट। वन लेस देन दिस, ये आई है तो ये जे है, तो ये चलेगा कहाँ से, आई से लेके J-1 तक। ठीक है, इसको याद रखना, या नंपाई वे में हमने किया हुआ 11th क्लास में। तो यहाँ पर जो 2 इंडेक्स है वो किसका, सी का, तो चलेगा कहाँ, 2 से लेके 3 तक, तो इसमें 3 है ही नहीं, तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, एन ए, डी तो है ही नहीं, क्योंकि हमने रो को अपने लेवल दे रखे हैं, तो वो 0 1 नहीं दिखाएगा, रो के ये एक्चुअल लेवल आएंगे यहाँ पर सी और डी, और 1 आ गया, ये 2 आ, वन के केस में सी के लिए क्या था, वन के केस में सी के लिए वैल्यू 3 थी, लेकिन डी के लिए कोई वैल्यू नहीं है वन के लिए, ये वन की के करस्पॉन्डिंग डी कोई नहीं है, कोई लेवल डी नहीं है, तो वहाँ पर क्या आ गया, नॉट अ नंबर। लेकिन 2 के लिए, सी के लिए वैल्यू थी 3 और डी के लिए वैल्यू थी 4, तो यहाँ, ठीक है। सिमिलरली आप उसको लेवल भी डायरेक्टली उसको की भी प्रोवाइड कर सकते हो, वो उसकी वैल्यूज कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज देते हैं। हमने क्या किया, डाटा डाटा फ्रेम क्रिएट किया डिक्शनरी डी से, और उसमें डी एफ ऑफ 1। अब 1 से रिलेटेड कौन से हैं, 1 से रिलेटेड ए वाला क्या है 1, बी वाला क्या है 2, सी वाला क्या है 3, लेकिन डी वाला कुछ भी नहीं है 1 से रिलेटेड, इंडेक्स तो सभी का लेगा क्योंकि इसके बेस पे मैक्सिमम वाले के केस पे चलेगा, तो उस केस में उसने एन ए दिया सिर्फ 1 वाला, क्योंकि हमने लेवल क्या पास किया 1। ठीक है, देन इसको करने से पहले इनको प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। ये हम कर चुके हैं, ये रहा, तो ये आइट्रेशन आ गई, ये रहा आपके पास, यहाँ पर 2.4 है, 2 3 है, 2 3 में क्या करेगा, ये 2 से लेके 3 तक चलेगा ऊपर वाला, ये वाला कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 2 से लेके 3 तक, ये वाला कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 2 से लेके 2 तक की, और ये वाला आई एल ओ सी, तो सेकंड वाले इंडेक्स का लोकेशन देगा। तो मैं क्या करता हूँ, इनको कमेंट बनाता हूँ और इसको रन करता हूँ, तो ये वही आउटपुट आ गया, सी वाला कॉरस्पॉन्डिंग टू 2, डी वाला कॉरस्पॉन्डिंग टू 3, 2 से लेकर 3 तक चला। अब इसको कमेंट बना देते हैं और इसका कमेंट हटा देते हैं, सिर्फ 2 से लेकर 2 तक ही चलना चाहिए, तो एक ही सी वाला, ठीक है। देन आई एल ओ सी 2 इसको बता दिया, इसके नीचे इसका आउटपुट आ गया, या इंटीजर बेस्ड लोकेशन भी, और जो कीज़ हैं वो इस साइड आ गई रेदर देन द कॉलम है, इस चीज़ का ये भी इसमें डिफरेंस आ, ठीक है। देन मूविंग ऑन टू द last topic of the day, that is the in pandas data frame we can iterate an element in two ways, iteration over the rows, iteration of the columns. Iteration means navigation, repeated navigation, पहले फर्स्ट रो फिर सेकंड रो फिर थर्ड रो एंड सो ऑन, जैसे लूपिंग में करते थे हम फॉर लूप बाय लूप से, सेम तरीके से यहाँ करेंगे। देयर आर 3 डिफरेंट methods to iterate over the rows, that is iter items, iter rows, iter tuples, ठीक है। मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा थोड़ा इनका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन में डिफरेंस आएगा। सी हाउ द डिफरेंस इज गिवन एंड यू कैन अंडरस्टैंड थ्रू द description. Here it says, in order to iterate over rows, we can use iter rows function. That function returns the each index value along with the series containing the data in the each. इंडेक्स वैल्यू के अकॉर्डिंगली उस सीरीज में उस रो में कौन कौन सा डाटा होगा वो शो करेगा, पहले जीरो वाले इंडेक्स का शो करेगा, फिर 1 वाले का, फिर 2 वाले का, फिर 3 वाले का, 4 वाले का एंड सो। सी हाउ इट इज डन,
अगर मैं ये वाली डिक्शनरी क्रिएट करें तो हमारे पास जो भी डाटा होगा वो जीरो इंडेक्स पे, देन जीरो पे हेडिंग करेगा, ऊपर नेम, उसके नीचे आ जाएगा देन अपर्णा, देन पंकज, देन सुधीर, ये सारे नाम आ जाएंगे उसके नीचे। फिर उसके बाद सेकंड कॉलम होगा, फिर थर्ड कॉलम होगा, सेकंड कॉलम का हेडिंग डिग्री होगा, थर्ड कॉलम का हेडिंग स्कोर होगा, एंड सो ऑन। हमने क्या किया, एक डाटा फ्रेम क्रिएट किया फ्रॉम दिस डिक्शनरी। अब उसको आइट्रेशन, ये मैं प्रिंट नहीं किया, इसको कमेंट बनाया हुआ है, मैं डायरेक्टली आइट्रेशन कर रहा हूँ यहाँ पर। आइट्रेटिंग ओवर द रोज यूजिंग द आइटर रो फंक्शन आई कॉमा जे इन df डॉट आइटर रोज। ठीक है, अब क्या किया, यहाँ पर प्रिंट आई कॉमा जे। अब आउटर लूप, जैसे हम आउटर लूप में क्या लेगा आई, और इनर लूप में जे। आउटर लूप में फर्स्ट टाइम क्या रहेगा, जीरो इंडेक्स, और इनर लूप जीरो से लेके रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इंडेक्स तक चलेगी। जब फिनिश हो जाएगी तो दोबारा से आइट्रेशन ऊपर आ जाएगी। अब इसके अंदर हमने दो स्टेटमेंट दे दी, प्रिंट आई जे, दैट मीन्स पहली रो का फर्स्ट जो भी रो थी उसका जीरो इंडेक्स था उसका, उसके जीरो कॉलम में क्या वैल्यू थी वो आ जाएगी। फिर उसके वन कॉलम में क्या वैल्यू, उसके टू कॉलम में, उसके थ्री वैल्यू में, ये सारा अंदर वाली लूप खत्म हो। अंदर वाली लूप खत्म हो गई तो ये एक ब्लैंक लाइन प्रिंट करेगा, दैट मीन अगला रिकॉर्ड जो है नेक्स्ट लाइन में जाएगा। दिस इज फॉर दैट पर्पस। ठीक है, इस तरीके से चला। जीरो इंडेक्स में नेम, ठीक है, अपर्णा, डिग्री क्या है, स्कोर क्या है वो आ गया, एक रो खत्म हो गई। फिर नेक्स्ट रो में इंडेक्स अगली बार लूप चली तो आई बिकम्स वन, फिर से जे जीरो वन टू, जे की वैल्यू से मूव करेगी। फिर वो खत्म हो गया अंदर वाली लूप, फिर से बाहर पे आया एक लाइन छोड़ के। फिर आई का वैल्यू हो गई टू, उसके बाद जो जे थी उसकी वैल्यू जीरो पे क्या है सुधीर, वन पे क्या है एमटेक, स्कोर पे क्या है 80। ठीक है, इस तरीके से चलेगा। लेकिन मैं देखता हूँ अगर हमारे पास प्रैक्टिकल होगा तो आपको और ज़्यादा अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। या तो मैं यहाँ डाटा फ्रेम को भी प्रिंट कर देते हैं साथ में ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये था हमारे पास ओरिजिनल डाटा फ्रेम। अब रो जीरो है और जे है वो जीरो पे वन है, अपर्णा है, वन पे जे में एम बी है, और टू पे जे में 90 है। ठीक है, ये जीरो इंडेक्स के लिए पहले चलिए। तो जीरो इंडेक्स के लिए जब चला तो ये हमारे पास है, जीरो इंडेक्स के लिए चला। जो हेडिंग नेम है उसमें जे जीरो है तो अपर्णा है, जे वन है तो एम बी है, जे टू है तो 90 है। जब एक बार जे अंदर वाला ख़त्म हो गया फिर अगला आइट्रेशन चलेगी, दोबारा से कंट्रोल आउटर लूप में जाएगा, आई की वैल्यू वन हो जाएगी, जे फिर से पहली बार ये, सेकंड टाइम ये, थर्ड टाइम ये। तो ये आपके पास पंकज बी सी एफ। नेक्स्ट टाइम फिर से लूप आउटर लूप पे आएगा, कंट्रोल टू पे आ गया तो अंदर वाली लूप फिर से जे जीरो, जे वन एंड जे टू। इस तरीके से ये सारे के सारे कवर। तो ये मीनिंग है। और हर बार ये इसका क्या काम है, ये जो नेक्स्ट लाइन जो ब्लैंक छोड़ रही है, एक बार अंदर वाली लूप फिनिश हुई है तो उसके बाद एक ब्लैंक लाइन, फिर अगले आउटर लूप पे कट रही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। इसके नेक्स्ट वाला जो फंक्शन है that iteration over the rows using the iter items. In order to iterate over the rows, we may use iter item functions that iterate over each column as a key value pair. Now, अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। हम जो लूप में रख रहे हैं, पहले हमने आई और जे लिखा, आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, रो इंडेक्स को, और जे रिप्रेजेंट कर रहा था कॉलम के हेडिंग। कॉलम कौन सा, जीरो है, वन है, टू है, थ्री है। अब हमने क्या किया कि आइटर आइटम में जो आउटर लूप में रखा वो की रखी डिक्शनरी की, और इनर लूप में क्या रख दिया, उसकी वैल्यू। मीन्स पहली की लेगा उसकी सारी वैल्यू शो करेगा, फिर दूसरी की लेगा उसकी सारी वैल्यू शो करेगा, फिर तीसरी की, एंड सो। तो पहली की जो थी वो हमारे पास नेम है। अगर हम देखें यहाँ पर फर्स्ट की क्या है, नेम। फर्स्ट की जो वैल्यूज थी वो क्या है, देन सेकंड की वैल्यूज क्या है, देन थर्ड की वैल्यूज क्या है, बोलिए। तो फर्स्ट की नेम है, उसके जीरो पे क्या है अपर्णा, वन पे पंकज, टू पे सुधीर, तो उसकी वैल्यूज ले रहा की सारी। फिर सेकंड की लिया डिग्री, उसकी सारी वैल्यूज। फिर थर्ड की लिया उसकी सारी, क्योंकि वैल्यू ही आइट्रेशन कर रही है, लूपिंग किसकी हो रही है, वैल्यू की। पहले अंदर वाली लूप में सारी वैल्यूज आ गई, जब सारी वैल्यूज फिनिश होगी तो प्रिंट एल से एक लाइन फिनिश होगी यहाँ पर। फिर आउटर लूप में आया, सेकंड की पकड़ी उसने, फिर अंदर वाली लूप में उसकी वैल्यूज आ गई।
फिर वो ब्लैक लाइन आ गई, फिर थर्ड एंड सो। नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज द आइट्रेशन ऑफ द रोज यूजिंग द आइटर टुपल्स। ये सबसे सिंपल है और सबसे इजी है। टुपल का मतलब क्या होता है? रिकॉर्ड, कंप्लीट रिकॉर्ड शो करेगा। हमने इसमें अभी एक ही वेरिएबल लेना है, फॉर आई एन डी एफ डॉट आइटर टुपल्स, जीरो इंडेक्स वाली सारी वैल्यूज, सारा कॉलम का हर एक वाली वैल्यू, नेम में क्या है, डिग्री में क्या है, स्कोर में क्या है। देन वन इंडेक्स का सारा नेम, डिग्री एंड स्कोर, देन टू इंडेक्स नेम, डिग्री एंड स्कोर, देन थ्री इंडेक्स डिग्री, नेम एंड स्कोर। दिस इज द मोस्ट easier one and the most presentable one in the iteration। एक पूरा रिकॉर्ड, उस रिकॉर्ड के अंदर इंडेक्स क्या, उसका फर्स्ट कॉलम हेडिंग कौन सा है, सेकंड कॉलम हेडिंग कौन सा है, थर्ड कॉलम हेडिंग कौन सा है, वो सारा इंडिविजुअली शो है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द लास्ट स्लाइड ऑफ आवर सेशन, दैट इज आइट्रेशन ऑफ द कॉलम्स। कॉलम के ऊपर आइट्रेशन करनी है सिर्फ, जैसे हमने यहाँ पर रो के ऊपर आइट्रेशन की, सिर्फ यहाँ कॉलम के ऊपर आइट्रेशन करनी है। तो हम, ये हमारे पास एक डाटा फ्रेम है जो कि हमने इस डिक्शनरी से क्रिएट किया। Now here we need to create a list of the data frame columns and then iterate through the list to pull out the data frame। data frame column में से कोई भी इंडिविजुअल वैल्यू हम निकाल के ले सकते हैं। कैसे? उसका हमें रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स सप्लाई करना। अब हम उसको, अब हमने सिर्फ जो रो है उसको फिक्स कर सकते हैं, कॉलम को हम आइट्रेट, क्योंकि हमारा जो हेडिंग है वही यही है, आइट्रेटिंग ओवर अ कॉलम। ठीक है, एक कॉलम के ऊपर कैसे आइट्रेशन करनी है। यहाँ क्या किया हमने, डाटा फ्रेम क्रिएट कर लिया, डाटा फ्रेम को प्रिंट कर दिया। ये डाटा फ्रेम के लिए अब प्रिंट, ये आ गया ब्लैंक लाइन, तो ये ब्लैंक लाइन आ गई यहाँ पर। उसके बाद क्रिएटिंग अ लिस्ट ऑफ द डाटा फ्रेम, तो डाटा फ्रेम की लिस्ट बना ली हमने, पहले ऊपर दिया हुआ ना, क्रिएट अ लिस्ट ऑफ द डाटा फ्रेम, तो उसी के हिसाब से किया लिस्ट। लिस्ट के अंदर आर्गूमेंट क्या कर दिया, सप्लाई, ये वाला डाटा फ्रेम जो हमने क्रिएट किया था, वो उसके सारे के सारे कॉलम्स नेम के अंदर एक डाटा फ्रेम बनेगा। डाटा फ्रेम का नाम ही हमने कॉलम्स रख दिया, अदरवाइज डोंट गेट कंफ्यूज, इसका नाम जरूरी है डाटा ये रखना। ठीक है, तो कॉलम्स रख दिया। उसके बाद फॉर आई इन कॉलम्स, दैट मीन अब आई की वैल्यू वेरी करेगी। ठीक है, अब आई इन कॉलम्स लिया, दैट मीन कॉलम्स, जो डाटा लिस्ट ऑफ द कॉलम्स बनाया हमने डाटा फ्रेम से, वो उसका इंडेक्स वेरी करेगा। ठीक है, तो उसमें जीरो के लिए ये कॉलम है, वन के लिए ये कॉलम है, टू के लिए ये कॉलम, ये वाली चीज़ वेरी करेगी, जीरो, वन, टू। तो यहाँ पर हमने क्या किया, प्रिंट डीएफ, पहली बार क्या किया, जीरो टू, जीरो टू कौन सा है, जीरो कॉलम है, टू नंबर रो है, सुधीर। फिर वन टू होगा, एम टेक, फिर उसके बाद टू टू होगा, फिर ये वाला टू फिक्स। तो हमारे पास सुधीर एम टेक एन एटी उसका आउटपुट है। दैट मीन यहाँ पर सिर्फ क्या वेरी कर रहा है, ओनली द कॉलम इंडेक्स इज चेंजिंग। यहाँ पर जीरो में सबसे पहले कॉलम कौन सा था, जीरो, उसके बाद कॉलम आया वन, उसके बाद कॉलम आया टू, रो तो फिक्स ही है, दैट इज टू, ये वाली हो, ये फिक्स रखिए। कॉलम में जीरो, फिर वन, फिर टू, यहाँ दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो वाली वैल्यू आपको आउटपुट देगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।